हरे तिरंगे झंडे में केसरिया रंग को देखो, त्याग हमें सिखलाता है। जब भी कोई संकट आए, मर मिटना हमें बताता है। सादा जीवन उच्च विचार, सफेद रंग बतलाता है। सत्य अहिंसा भाईचारे का पाठ हमें सिखलाता है। हरे रंग की अपनी कहानी मन को हर्षित कर जाती है। हरी भरी प्रकृति को देखो, सबके मन को भाती है। बीच में देखो अशोक चक्र को, जो हरदम चलते रहता है। रुको नहीं तुम आगे बढ़ो, हर पल हमसे कहता है। तीन रंग का नहीं बस ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आजाद भारत देश की पावन हवा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, प्रधान अध्यापिका महोदया, आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी को मैं शत शत नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन समस्त माता पिता को जो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के साथ स्वतंत्रता दिवस के इस पावन समारोह में उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित उन सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिनका नाम मेरी वाणी से छूट गया हो। आज हम सब यहाँ पर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त का यह दिन हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारतवासियों को कई वर्ष की गुलामी के पश्चात आज ही के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हालांकि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना कोई आसान कार्य न था, लेकिन हमारे देश के सच्चे नायकों ने अपना बलिदान देकर हमको आज़ादी दिलाई। पूर्ण स्वराज पाने के लिए हमारे नायकों ने हिंसात्मक और अहिंसात्मक कई आंदोलन आयोजित किए। इन आंदोलनों और उनके बलिदान के फलस्वरूप आज हम सब स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे बलिदानी नायकों के सम्मान में मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है। Let's be an example to the world. Let peace prevail in every sphere. Let's help the poor, downtrodden and old. Let's progress with minds without fear. No one should stay hungry any day. No one should stay unsheltered, I pray. No one should lie uncovered on the way. God loves India, we all must say. How different this morning is, you'll yourself discover as the tricolors of our independence unfold. The vibes around tell a beautiful tale of our independence, which is truly unforgettable. Today, we are celebrating freedom, thanks to those who came before, those brave men who fought and died. Freedom always comes with a price. While we celebrate our independence, we salute to all our real heroes who have made our country proud. Are here to mark another landmark of success as we complete 73 years of freedom, celebrating 74th Independence Day today. We have achieved remarkable advancements in various spheres, but all these achievements matter less until the people below the poverty line are uplifted in the real sense. This special assembly is dedicated to the real heroes of our lives who have come out of their way to help the less fortunate folk and have brought a smile to their faces. But before we begin, I would like to ask Madam Headmistress to conduct the special prayer for all of us. Good morning to the August gathering. At the very outset,
let me wish each and every member of the DPS Kolar family a very, very happy Independence Day. On this auspicious day, let us pray for the freedom and the sovereignty of this great nation. So all of you, join your hands, close your eyes and bow your heads. Do not repeat after me. On this Independence Day, I wish and I pray that the people of my country remember the greatness of India and its values while striving to do well in all spheres. Contribute to the country's progress. Strive to root out all evil from our society, whether it is linked to caste, corruption, intolerance, and the like. Fight against all forms of discrimination, take their lives seriously, and stop being indifferent. Strive to live for others. Promise to bring about a positive change to the lives of others. Learn to be happy always. Amen. धन्यवाद प्रधानाध्यापिका महोदया। ऐसी देशभक्तिमय प्रार्थना सुनने के उपरांत मैं आपके समक्ष अपने मन में आए हुए भावों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। यह पंक्तियाँ हमारे देश के उन सच्चे नायकों को समर्पित है जो इस विकराल परिस्थिति में कई लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नज़ारे नज़र से यह कहने लगे, नज़ारे नज़र से यह कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तभी मेरे दिल से यह आवाज़ आई, तभी मेरे दिल से यह आवाज़ आई, मेरे वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मेरे वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो इस भाव के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी अयन शर्मा को, जो कि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण संस्कृत श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम। इस मातृभूमि ने हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस हिंदू भूमि पर सुखपूर्वक मैं बड़ा हुआ हूँ। यह मातृभूमि महामंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए मैं यह नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। That was really soul soothing. Good choices are generated in our minds. When we think of our life as an opportunity to help others, we establish a positive reference for the choices. We all need to be good thinkers if we expect to make good choices in our life. So, let's hear some meaningful thought from Abhimanyu Saha. Today's thought of the day is, hard time doesn't create heroes. It is during hard times when the real heroes are revealed. I repeat my thought, hard time doesn't create heroes. It is during hard times when the real heroes are revealed. Thank you. That was really thought-provoking. Happiness is the new rich. Inner peace is the new success. Health is the new wealth. Kindness is the new cool. Kindness is spreading sunshine into other people's life, regardless of the weather. People need your kindness more than your opinion. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are endless. With this beautiful thought, let's watch this video presentation based on our real heroes, our students, parents fraternity, and others who have opened their minds and heart for humanity in these tough times.
सड़कें है अब लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहां खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। अस्पतालों में जूझ रहे सब डॉक्टर इस वक्त इंसानियत के भगवान हैं। खाकी में निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तानी का सलाम है। घर में रहकर हर नागरिक दे रहा अपना योगदान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। पूरी दुनिया का दुश्मन अब एक है, पृथ्वी अब जंग है, मैदान है। सरहदों पे आज भी सिपाही दे रहे प्राणों का बलिदान है। माना कि वक्त है मुश्किल, पर इरादे अब चट्टान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। ममता का तू है दूजाना, समर्पण को तेरे प्रणाम। आपदा से ये रण तू है लड़ रहा, मौत का बढ़ रहा कारवां। तेरे हाथों से ही जग का आशीष है, तेरा जीवन तेरा ना रहा। इस पथ पर चले ना रुके ना डरे, विश्व तेरा ऋणी हो गया। सूरज की तरह तू अखंडित रहा, तेरा जीवन ही है प्रेरणा। समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। ममता का तू है दूजाना, समर्पण को तेरे प्रणाम। Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, a helping hand, or a small act of kindness which have the power to turn a life around. I'm sure you all must be inspired after watching this wonderful video presentation. When it rains, look for the rainbow. When it is dark, look for the stars. Always believe that something wonderful is going to happen, because optimism is a faith that leads to achievement. It's time to take you all to the world of the little champs through this presentation by the kids of the Castle of Dreams. जय 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 हो, जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे।
ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान। बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। That was amazing. When I see the birds flying high in the sky, I thank those who made this tough time pass by. There are many things that can't be lived without, but freedom is what I cherish without any doubt. Music fills our heart with a feeling of patriotism when we listen to the songs dedicated to our real heroes. Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to imagination, and life to everything. Music once admitted to the soul becomes the spirit that never dies. So, dear viewers, hold your breath as we bring before you a musical presentation in patriotic flavor. I am Manaswini Verma from class 7A and today I am playing Sandesha Aate Hai on guitar. So let's begin. Thank you everyone.
संगीत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे भीतर कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजने लगता है। सृष्टि के हर कण में जीवन है और हर कण में संगीत है। तो हम वाद्य यंत्रों की इतनी सुंदर प्रस्तुति देखने के पश्चात बढ़ते हैं काव्य की तरफ। कहा जाता है कि समय की बदलती हुई सच्चाइयों को कविताएं अत्यंत गहराई के साथ व्यक्त करती हैं। हमारे देश के वर्तमान समय के सच्चे नायकों को भेंट करती हुई ये पंक्तियां किसी ने खूब कही हैं। जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, हीरा है जो तराशने वाले को शान देता है। यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, अमर है जो मेहनत से नाम को पहचान देता है। तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं वर्तमान दौर की परिस्थितियों को दर्शाने वाली कविता, जो कि प्रस्तुत कर रही हैं शिक्षा केंद्र की छात्रा नीलम डांगी। Myself नीलम डांगी from class 5th। मैं आपको कोविड पोयम सुनाने जा रही हूँ। याद रखा जाएगा उन लोगों का नाम जो देश पर जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। याद रखा जाएगा उन लोगों का काम जो देश पर जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। जब घर पर लोग बैठे थे तो ये जाबाज तैनात थे, अस्पताल में, सड़कों पर, दुकानों में, आपकी और हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। ना है औजार, ना कोई मदद, पर फिर भी ये जाबाज डटे हुए हैं कोरोना के सामने, ताकि आप, हम और हमारा यह देश रहे स्वस्थ और सुरक्षित। कूड़ा उठाने से लेकर मरीज को मौत के दलदल से खींच कर लाने तक आज देश ने जान लिया है अपने असली हीरोज को। आज देश ने जान लिया है अपने असली हीरोज को। यह वो नहीं जो फिल्मों में आते हैं या सोशल मीडिया पर गनगनाते हैं। यह वो नहीं जो करोड़ों पाते हैं या अपनी हर जरूरत पूरी कर जाते हैं। यह वो है जो कभी नजरअंदाज तो कभी बिना किसी शुक्रिया के रह जाते हैं। पर आज नहीं, अब से नहीं, सलाम है उनको, प्रणाम है उनको, जो अपने परिवारों से दूर, औजारों से महरूम, अपनी परवाह किए बिना खड़े हैं, हर मुसीबत का सामना किए देश को इस महामारी के प्रलय से बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस। अति उत्तम, बहुत ही शानदार और जानदार प्रस्तुति रही नीलम आपकी। उत्साहवर्धन कर देने वाली ऐसी कविता को सुनने के पश्चात तो मैं भी वर्तमान हालातों को देखते हुए यही कहना चाहूँगा, देशभक्ति का अर्थ ना बताओ, देशभक्ति का अर्थ ना बताओ, सही मायने में देशभक्ति करो, आज के सच्चे नायक बनो, लोगों के मददगार बनो, महानता के गान ना गाओ, महानता के गान ना गाओ, इंसानियत की मिसाल बनो और हमारे बलिदानी नायकों को ना भूलो, उन्हें याद रखो और उनकी बलिदान स्वरूप मिले इस भारत देश को बचाए रखो, बनाए रखो, क्योंकि मैं भारत हूँ, आप भारत हैं और हम सब भारत हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नृत्य प्रदर्शन की ओर, जिसका कि सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह मनोरंजक तो होता ही है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत करता है। किसी विद्वान ने नृत्य के विषय पर खूब कहा है, ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, हर लेता सारे रोग है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, जीवन जीने का शोध है नृत्य। तो आइए अब हम नृत्य की प्रस्तुति देखते हैं, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं राधिका शर्मा, देवलीना शाह और साक्षी केने।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। उत्तम, अत्यंत सुंदर भारत भक्तिमय नृत्य प्रस्तुति देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हमारी आंखों में चमकने वाला सपना है जिसे हमें साकार करना है। हमारे देश पे जब जब आपदाएं आई या हमारे देश पर हमले हुए तब तब हम सब के बीच से नायक यानी असली हीरो निकल कर आए। ये सच्चे नायक हमारे बीच महिलाओं, पुरुष और बच्चों के रूप में मौजूद हैं। इनमें से कोई पुलिस में है तो कोई सेना में, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक है तो कोई विद्यार्थी और बच्चे, जी हाँ बच्चे, इन्होंने तो अपनी गुल्लक तोड़ी, अपने हुनर का प्रदर्शन कर जरूरतमंद लोगों की मदद की और समाज में बाल नायक नायिका के रूप में उभर कर आए। ऐसे समस्त नायकों के लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। कर्मशील कर्तव्यपरायण कार्य कुशल कर्मठ होते हैं। कर्मशील कर्तव्यपरायण कार्य कुशल कर्मठ होते हैं। युग को प्रगति पथ पर ले जाते, युग को प्रगति पथ पर ले जाते ये पुनीत एक रथ होते हैं। ये होते हैं धुरी देश की, ये होते हैं धुरी देश की, इन पर देश गर्व करता है। ऐसे समस्त नायकों को मैं शत शत बार नमन करती हूँ। मैं आज के इस आयोजन के समापन से पूर्व हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के सच्चे नायकों की जय, जय हो देश के सच्चे नायक, जय हो। धन्यवाद। As we have come to the culmination of the program, I, Aanchal Tiwari, House Captain Amaltas, take this opportunity to thank our Honorable Pro Vice Chairman Sir for his valuable time and wonderful speech. Sir, your speech has enlightened us and has inspired us in many ways. I would like to thank Madam Principal, Madam Vice Principal, Madam Headmistress for their guidance, without whom this virtual Independence Day Assembly would not have been so special. I would also like to thank the PE department, house wardens, class coordinators and teachers. Your efforts are much appreciated. A big thank you to the Department of Art and Craft, all the teachers, volunteers, students, participants and helpers who have sacrificed their valuable time to make this happen. Their effort and hard work in organizing, decorating and helping out in every which way. I would also like to thank the Music and Dance Department for the sound arrangements and for putting soul into the program. Last but not the least, I thank God Almighty for His blessings.